السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم SSLC سوشل سائنس کا علم سیاسیات میں دوسرا باب نمبر 2 ہندوستان کے مسائل اور ان کا حل۔ عزیز طلباء، اس میں دیے ہوئے مشق میں تمام سوالات کے جوابات پڑھتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ پچھلے ایئر میں پوچھے گئے ان تمام سوالوں کے جوابات پڑھنے، سمجھنے اور یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ چلے دیکھیں، بنا کسی دیری کے درج ذیل جملوں میں خالی جگہوں کو بھرتی کرتے ہوئے جملوں کو مکمل کیجیے۔ تو پہلا رہا، خود کے علاقے سے والہانہ محبت اور پسند کو رکھنا ڈیش کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ علاقائیت۔ نمبر 2، کرناٹک میں بدعنوانی کو دور کرنے کے لیے ڈیش نامی تنظیم کو قائم کیا گیا ہے۔ کون سی؟ 2005 میں۔ نیکسٹ، نمبر 3، 2011 کی مردم شماری کے مطابق ہندوستان کی آبادی ڈیش کروڑ سے زیادہ ہے۔ کتنی کروڑ؟ 74 کروڑ۔ نمبر 4، ہندوستان کی پہلی خاتون سپریم کورٹ کی جو جج تھی وہ کون تھے؟ فاطمہ بی بی۔ نیکسٹ، درج ذیل سوالات کے جوابات گروہوں میں بحث کیجیے۔ سوال نمبر 5، فرقہ پرستی ملک کے لیے نقصان دہ ہے، کیسے؟ جواب، یہ سماجی گروپ بندی، معاشی عداوت اور سیاسی دشمنی ظاہر کرتی ہے۔ فرقہ پرستی دو مذہبی طبقوں کے درمیان آپسی نفرت کے فلسفے کو پھیلاتی ہے۔ یہ سماج کی بے چینی کو بڑھاتے ہوئے زندگی اور جائیداد کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فرقہ پرستی مذہبی طبقوں کے درمیان ناجائز تہمت بازی، جسمانی بکھراؤ کو بھی پھیلاتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 6۔ دیکھیں کوشچن نمبر 6 کیا دیا ہے یہاں پر؟ علاقائیت سے ملک کی ترقی میں بہت رکاوٹ ہے، بحث کیجیے۔ جو علاقائیت ہے اس سے کیا ہے؟ ملک کی ترقی میں کیا ہے؟ بہت رکاوٹ ثابت ہو رہی، کیسے؟ جواب، عوام کا اپنے خود کے علاقے سے والہانہ محبت کا اظہار اور اس علاقے کے متعلق اپنی پسند اور دلچسپیوں والا رویہ ہی علاقائیت کہلاتا ہے۔ خود کے علاقے کو ہی سب سے عظیم سمجھنے کی کوشش کو یہ بڑھاوا دیتا ہے۔ یہ جذبہ جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ قومی اتحاد اور ملک کی فلاح و بہبودی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 7۔ دیکھیں کوشچن نمبر 7 کیا چاہ رہا ہے؟ خواندگی کو بڑھانے کے لیے کن اقدامات کو اٹھایا گیا ہے؟ خواندگی کو بڑھانے کے لیے کون کون سے اقدامات اٹھائے ہیں؟ جواب، سروا شکشن ابھیان 2001 میں، جسمانی طور پر کمزور لوگوں کو تعلیمی سہولیات فراہم کرنا، خواتین کی تعلیم کا سماج میں شعور بیدار کرنا، قومی خواندگی مشن 1988 کی شروعات کرنا، ساکشر ابھی بھارت، تعلیم کو بنیادی حقوق کیا ہے قرار دینا، RTE کے 2009 کے تعلیمی حق میسر کرنا فراہم کرنا، 6 سے 14 سال تک کے عمر کے بچوں کو لازمی تعلیم اور مفت تعلیم کیا ہے فراہم کرنا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 8۔ کوشچن نمبر 8 میں کیا چاہ رہا ہے؟ دیکھو کوشچن نمبر 8 کیا ہے؟ عورتوں کے مقام کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے تجاویز کیا ہیں؟ عورتوں کا جو رتبہ ہے اسے بڑھانے کے لیے کون کون سے تجاویز اختیار کیے ہیں؟ جواب، حکومت نے محکمہ برائے بہبودی اطفال و نسواں قائم کیا ہے۔ عورتوں کی تعلیم پر زور، بچپن کی شادیوں کی ممانعت کا قانون، جہیز کی ممانعت کا قانون، استری شکتی پروگرام کا آغاز، خود روزگار کے لیے موقع فراہم کرنا یا قرضے دینا، خواتین کی انجمنیں منڈل استری شکتی گروپ بنائے گئے ہیں، سیلف ہیلپ گروپ اور عورتوں کی امداد باہمی سوسائٹیوں کا آغاز، ریاستی اور قومی سطحوں پر عورتوں کی کمیشن، لوکل باڈیز میں مجلس خاتون ساز میں ریزرویشن کیا ہے فراہم کرنا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 9، ملک کی آبادی کو انسانی وسائل سمجھنا چاہیے، اس پر تبصرہ کیجیے۔ جواب، ہمارا ملک اپنی آبادی کو بوجھ سمجھے بغیر اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں اچھی تعلیم، ہنرمندی اور تربیت فراہم کر کے اس آبادی کو فائدہ مند طاقت بنا سکتی ہے اور ملک کی ترقی میں ان کا صحیح استعمال کر سکتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 11۔ دیکھیں کوشچن نمبر 10 کیا بتانا چاہتا ہے؟ کوشچن نمبر 10، غریبی کو ختم کرنے کے لیے کن منصوبوں کو اپنایا گیا ہے؟ جواب،
जवाहर रोजगार योजना, दही रोजगार गारंटी स्कीम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में स्मगलिंग किसे कहते हैं, इसको ख़त्म करने के लिए तुम्हारे मशवरे क्या हैं। जवाब, किसी भी टैक्स को अदा किए बगैर हुकूमत से खुफिया तौर पर अशिया को लाना और ले जाना ही स्मगलिंग कहलाता है। स्मगलिंग एक मुल्क मुखालिफ और मुआशी जुर्म है। इस जज्बे को लोगों में पेवस्त करना ज़रूरी है। स्मगलिंग की अशिया को समाजी तौर पर इनकार करते हुए इसको काबू में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है, नफ़ाखोरी से पैदाकार और सार्फिन को नुकसान होता है, इस बयान को किस तरह साबित करोगे। जवाब, आम लोगों या सार्फिन से ज़्यादा नफ़ा हासिल करने को नफ़ाखोरी या मुनाफाखोरी कहा जाता है। तिजारती कारोबार में बहुत ही आसान तरीके से ज़ायद रुपया कमाना एक गलत तरीक़ा है। ये नफ़ाखोरी समाज को एक रिश्वतखोर समाज बनाती है, जिससे मुआशी गैर मसावत का खदशा रहता है और गुर्बत में भी ज़्यादती होती है। इससे समाज में जुराइम की तादाद में इजाफ़ा होता है। मुआशी निज़ाम में नफ़ाखोरी एक नासाज तिजारती कारोबार को जन्म देती है। इससे कीमतों में लगातार इजाफ़ा होकर अफराती तर्ज को मतलब ख़तरा भी लाहक रहता है। नेक्स्ट 2015 का क्वेश्चन देखिए, कौमी खवानदगी मिशन किस साल कायम हुआ था। 1988 में। 2015 का सवाल रहा, फ़िरक़ा वारियत क्या है। जवाब, मज़हब के नाम पर एक मुनज़्ज़म समाज की तक़सीम और एक ही जगह रहने वाले अफराद की आपसी तज़ाद के जज्बे को उभारना ही फ़िरक़ा वारियत कहलाता है। सवाल, नाखवानदगी को ख़त्म करने के लिए हमारी हुकूमत ने कौन से इक़दामात उठा रहे हैं। नाखवानदगी को ख़त्म करने के लिए हमारे स्कूल हिंदुस्तान में 6 साल से 14 साल की उम्र के तमाम बच्चों के लिए सर्व शिक्षण अभियान प्रोग्राम जारी किया है। हुकूमत हिंद ने 1988 में कौमी तालीम बालिगा मिशन कायम किया। 2009 में मुल्क भर में तालीम हक़ का क़ानून भी जारी किया है। नेक्स्ट सवाल 2016 में पूछा गया सवाल है, दही इलाक़ा की औरतों की तरक्की के लिए कर्नाटक हुकूमत ने ये प्रोग्राम नाफिज किया। कौन सा प्रोग्राम, 2016 का क्वेश्चन है, कौन सा प्रोग्राम है वो, स्त्री शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फ़िरक़ा परस्ती मुल्क की तरक्की के लिए नुकसानदा है, क्यों। जवाब, ये समाजी ग्रुप बंदी मुआशी अदावत और सियासी दुश्मनी ज़ाहिर करती है। फ़िरक़ा परस्ती दो मजहबी तबक़ों के दरमियान आपसी नफ़रत के फ़लसफ़े को फैलाती है। ये समाज की बेचैनी को बढ़ाते हुए ज़िंदगी और जायदाद को तबाह व बर्बाद कर देती है। फ़िरक़ा परस्ती मजहबी तबक़ों के दरमियान नाजायज़ तोहमतबाजी जिस्मानी बिखराव को भी फैलाती है। नेक्स्ट 2016 के क्वेश्चन से देखें कौन कौन से वो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन रहा, कर्नाटक की हुकूमत ने दही ख़वातीन की तरक्की के लिए कौन सा प्रोग्राम नाफिज किया। पहले पढ़ चुके हैं हमें, स्त्री शक्ति प्रोग्राम। नंबर 2, ख़वानदगी में इजाफ़ा करने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए कोई 4 इक़दामात। नंबर 1, सर्व शिक्षण अभियान 2001, औरतों और कमज़ोरों की तालीम, कौमी तालीम बालिगा मिशन 1988 में कायम किया, ख़वानदा हिंदुस्तान प्रोग्राम, ये तमाम क्या है। नेक्स्ट 2009 RTE तालीम का हक़। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है, औरतों के मुकाम को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात। पहले पढ़ चुके हैं, हुकूमत ने महकमा बराम बहबूद अतफ़ाल व निस्वां कायम किया है। औरतों की तालीम पर ज़ोर, बचपन की शादियों की ममानियत का क़ानून, जहेज़ की ममानियत का क़ानून, स्त्री शक्ति प्रोग्रामों का आगाज़, खुद रोज़गार के लिए क़र्ज़े देना, ख़वातीन के अंजुमने मंडल, स्त्री शक्ति ग्रुप बनाना, सेल्फ़ हेल्प ग्रुप और औरतों को इमदाद, बाहमी सोसाइटियों का आगाज़, रियासती और कौमी सतहों पर औरतों के कमीशन, लोकल बॉडीज़ में मुजालिस खातून साज में रिज़र्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें क्या पूछ रहा है, हुकूमत हिंद के नाखवानदगी के मसले को दूर करने के लिए उठाए गए इक़दामात कौन कौन से हैं।
नाखवानदगी को दूर करने के लिए, इलिटरेट के रेट को कम करने के लिए कौन कौन से इकदाम उठाए हैं? पहला सर्व शिक्षण अभियान है, कौमी खवानदगी मिशन है, साक्षरता भारत प्रोग्राम है, तालीम का हक़ है, मुफ्त और लाजमी प्राइमरी तालीम है, लड़कियों की तालीम है। नेक्स्ट, जून 2019 का सवाल रहा, गरीबी को दूर करने के लिए हुकूमत के उठाए गए इक़दाम कौन कौन से हैं? लोगों को पहला रोज़गार मुहैया करना, अहम महारती तालीम के मियार को बढ़ाना, सरमाया को क़र्ज़ से मना करने क़र्ज़ की शक्ल में इमदाद देना, मैकेनिकी पेशे और दीगर खुद रोज़गार पेशे आफादियत के दौर में सनअतों में पैदा की जाने वाली अशिया को मार्केट में मुनासिब दाम दिलवाना। नेक्स्ट, 2020 में क्वेश्चन, बालिका केंद्र तंजीम को रियासत के किस इदारे ने अपनाया जिसके तहत तमाम लड़कियों को मदद करना है? बालिका केंद्र आंगनवाड़ी। नंबर 2, अपने तासुरात के ज़रिए बताइए कि फ़िरक़ा वारियत हिंदुस्तानी समाज का एक सबसे बड़ा मसला है, उसे किस तरह हल किया जा सकता है? मसावी क़ानूनी तंजीम, शहरियों के साथ यकसा बर्ताव, सेकुलरिज़म, कौमियत के जज्बे, तबक़ाती गौर व फ़िक्र से बढ़कर समझना, फ़िरक़ा वारियत को रोकना, समाजी मजहबी मुआशी बर्ताव से हालात को सुधारना, तमाम मज़हब के रस्म व रिवाज को अवाम में मकबूल बनाना, तंदुरुस्त कौमियत के ख़यालात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालिया दिनों में औरतों के मुकाम को बेहतर बनाने के लिए तरफदारी की जा रही है, कैसे? सितंबर 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, औरतों के मुकाम को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत हिंद कौन कौन से इक़दाम उठाए हैं? मार्च 2022। नेक्स्ट, औरतों के मुकाम को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने कौन से इक़दाम उठाए हैं? जून 2022। हिंदुस्तान में औरतों का मुकाम इन दिनों पे होता जा रहा है, जो पे जवाब पेश कीजिए। मार्च 2024। औरतों की समाजी हैसियत को उजागर करने की खातिर सरकार ने कौन से इक़दाम उठाए हैं? जून 2024। देखिए, तमाम सवालात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका मतलब आप इसका जवाब बेहतर तरीके से याद करना जानना ज़रूरी है। देखिए, औरतों की तालीम और तरक्की को बेहतर बनाने के लिए बहबूदी अतफ़ाल व निस्वां कायम किया। औरतों की सेहत, तालीम और समाजी इलाक़े के मर्तबे को भी बेहतर बनाने की कोशिश की है। बचपन की शादियों की रोकथाम का क़ानून, जहेज़ की रोकथाम का क़ानून, स्त्री शक्ति जैसे प्रोग्राम्स की तश्कील, ख़वातीन कमीशन की तश्कील करके ख़वातीन की फ़रियाद और शिकायतों की तस्दीक करना, मजलिस, कानून साज और पार्लियामेंट में भी औरतों को रिज़र्वेशन देने की कोशिश की जा रही है। औरतों को सरकारी महकमों भी रिज़र्वेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। लोकायुक्ता इदारा को कायम करने का अहम मकसद रिश्वतखोरी की जांच है। महकमा बराए बहबूदी अतफ़ाल व निस्वां को कायम किया। औरतों की तालीम, सेहत और समाजी इलाक़े, बचपन की शादियों की रोकथाम, जहेज़ की रोकथाम का क़ानून, स्त्री शक्ति प्रोग्राम्स, ख़वातीन को ख़ुदकार बनाने के लिए क़र्ज़ा क्या है दिया जाता है। नेक्स्ट, 2023 मार्च का क्वेश्चन है, फ़िरक़ा परस्ती क्या है? समाज को मज़हब की बुनियाद पर बांटना, मज़ाहिब के दरमियान दुश्मनी, रंजिश, खौफ व वहर पैदा करना ही क्या है? फ़िरक़ा परस्ती है। नेक्स्ट, मार्च 2023 और जून 2023 का क्वेश्चन है, नाखवानदगी को ख़त्म करने के लिए हुकूमत हिंद ने क्या इक़दाम उठाए हैं? नंबर 2, हुकूमत हिंद के ज़रिए तालीमी खवानदगी को बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम लिए गए हैं, जो कि पिछले साल पूछे गए सवालात थे। तो उनका जवाब रहा, जवाब सर्व शिक्षण अभियान 2001 में शुरू किया गया है। जिस्मानी तौर पर जो कमज़ोर लोग हैं उनको तालीमी सहूलियात फराहम करना है। ख़वातीन की तालीम का समाज में शऊर पैदा करना है। कौमी खवानदगी मिशन 1988 में शुरुआत की। साक्षरता भारत तैयार किया। तालीम को बुनियादी हुकूक़ फराहम करार दिया गया। RTE के 2009 में तालीमी हक़ शुरू किए। 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए लाजमी और मुफ्त तालीम दी गई। इसी तरह 2024 मार्च का भी यही क्वेश्चन है, गवर्नमेंट किस तरह हिंदुस्तान में खवानदगी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है? पढ़ चुके हैं हम सर्व शिक्षण अभियान, कौमी तालीमी मिशन, खवानदा हिंदुस्तान, बुनियादी हक़, तालीमी हक़ का क़ानून। जून 2024 का क्वेश्चन है, नफ़ाखोरी को किस तरह रोक सकते हैं? मुनासिब हुकूमती कंट्रोल, कीमतों की तस्दीक़ी जायज़ा, इमदादी मार्केट्स की तोसी, मुनासिब टैक्स की वसूली।
عزیز طلباء، یہ جو رہا ہم بہت ہی امپورٹنٹ لیسن پڑھ چکے ہیں. آپ اس کو آڈیو نوٹس کے طور پر کیا ہے سن کر کیا ہے آپ اپنے دوستوں کو اپنے اسکول کے گروپس میں کیا ہے شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی یاد رکھنے میں آسانی ہو سکے. عزیز طلباء، اسی طرح ہم اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے لائک شیئر تمام کیجئے. چلیے تب تک کہ اگلے ویڈیو ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.